Hello friends. Our topic today our topic is resistivity or specific resistance. So this is also very important regarding examination point of view, and one numerical may come from this topic. So after completing the resistance, we have discussed in resistance, the but the main resistance is. Second, we have discussed the factors on which the resistance depend, and after that we did the cases of combination of resistance, in which we did combination in series and combination in parallel. And I'm happy that many students have replied, and they solved the numericals, and few are not doing work, but they will pay for this, because those who are not involving taking casually, that will be problematic in future time. Because if we are knowing that the coronavirus, this will prevail up to maybe September or more than September. So school are not going to be open, and when they will be open, the whole syllabus will be dumped on your head, and then you will understand the theme. So be careful. That I'm requesting all of you that please be careful that whatever been teach is going to be teach in the classes. Be careful and be serious, because there is no probability even to open the school in the September also, because this is only the government is hiding that they will be opening school soon, but it is not happening. Actually, the reality is something different. So be careful. If you're not doing here, you are prevailing in the board class, and you will be very careful. So I request all of you that please be careful. Whatever we are doing for you only, and you should be very careful and doing homework, because if you are busy with some other works that are not very important, because you are a student and your study is priority for you. And please be careful and don't be casual for your study. This is a very painful time for all, and you have to be conscious about your study, because you are in the board class. So please be careful and study very carefully, because some are not doing study and they are casually means passing the times, but they will be there suffer after some time. Okay, so be careful. And now let us do the topic now, the resistivity and specific resistance. Okay, so what is actually resistivity or specific resistance? So here the word is specific resistance. So I want to clear you the concept first, that since we know that the resistance is proportional to first the length, and then inversely proportional to area of cross section of the wire. ठीक है, तो ये कौन से फैक्टर बताए थे मैंने? दिस इज ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, and one two more factors are there, that is the temperature and the nature of material. So first of all we will understand the topic, what the specific resistance is. Then we will go to the depth of the topic, that why we are calling this as specific resistance or resistivity. This word is something is relating to the resistance, but how it is different, that is quite important, that is very important. Okay, so now this is r proportional to length and r inversely proportional to area of cross section. So now when you combine these two factors, the L will be in the numerator and A will be in the denominator. So this is only we are taking help of the caution. We have taken already these two terms, length and area of projection, and we are knowing also. So when you know this R is proportional to L and A, but L in the numerator and A is denominator, so we can convert it into an equation. So for an equation, we will use equality. We will use equality. So equality means, left is exactly equal to right. So we have to use a constant, and the constant here we are using a symbol, this thing, L upon A. So this symbol is actually called as rho, R-H-O. This is a just name of Greek name. So we are saying this as rho. Okay. This rho here is called as what is called as the constant, and constant, like we read V proportional to I, and then we after that we wrote V is equal to Ri. So R was proportionality constant. Here also the rho will be the proportionality constant. Okay. So now further, now we are interested in rho. So rho here is, first of all, this is called as constant of proportionality. You write full, and its common name.
named as the beautiful, that is resistivity. इसी का नाम पड़ गया दोस्तों resistivity. ठीक है, तो resistivity means the constant, and resistivity means that we will understand by manipulating the terms. We will keep row one side and cross multiply all the terms. This is R A upon L. So the formula of resistivity comes out to be resistivity is equal to the resistance of the wire, area of cross section of the wire, and length. ठीक है, so now we will confirm the unit also. R is resistance, so we will measure this is in ohm, area that is in meter square, and then length means meter. So this meter and meter square is cancel out, and you will left with only ohm मीटर. सो ओम के लिए अपन सिंबल भी यूज कर सकते हैं ओमेगा, तो इसकी यूनिट होती है ओमेगा मीटर, याद रखें, ठीक है ना. तो ये इसका पहला काम हो गया दोस्तों. ठीक है, कि रेजिस्टिविटी आपसे बोलेगा व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो आपने बोला है कि रेजिस्टिविटी इज फॉर्मुलेटिकली रिटर्न एज रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल. ठीक है, अब असली में जो इसके मायने हैं वो अपने को समझने हैं. पहले आप इन चीजों को नोट रखें और अपने मायने जो है वो अपन समझेंगे कि रेजिस्टिविटी की कॉलिंग क्यों हुई और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहलाता है. जैसे अपन बोलते हैं बच्चों, हम लोग जैसे डॉक्टर होता है, जनरल डॉक्टर, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर है तो या सिंपल डॉक्टर है, उसके बाद अपन जाते हैं तो वो किसी भी चीज़ का ऑपरेशन नहीं करता, वो आपको सिर्फ सिंपल अगर सर्दी जुकाम या पेट दर्द कुछ भी हो तो आपको सिंपल दवाई देता है. लेकिन जब आपको पता है कि मुझे जो है स्पेशल जैसे माइग्रेन है, तो आप क्या करते हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो दिमाग का डॉक्टर है. तो वो न्यूरोलॉजिस्ट क्या है, वो एमबीबीएस तो है ही, लेकिन साथ में उसने एक महारत हासिल करके रखा हुआ है किसके ऊपर, उस जो स्कल के ऊपर जितना भी ब्रेन में अपना गले से ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है उसको बोलते, तो वो दिमाग का ही स्पेशलिस्ट है. तो स्पेशलिस्ट जो होना है वो एक किसी विशेष गुण को जो है वो बताता है. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों कि रेजिस्टेंस होना एक आम बात हो गई कि ऑब्स्टेकल फॉर द करंट. तो लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि खास रेजिस्टेंस है, कुछ ये स्पेशल है, तो वो चीज अपने को अब आएगी समझ में. ठीक है, अब देखना यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी को अपन कैसे समझेंगे. देखो, अगर हम एक दो वायर उठा लेते हैं दोस्तों, जैसे ये उठा ली फर्स्ट, और एक और वायर उठा ली सेकंड, और दोनों में क्या खासियत है दोस्तों, दोनों में जो आपका इस वायर का जो मुंह है जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दोनों का क्या कर दिया अपन ने, सेम कर दिया. उसके बाद दोनों की लेंथ भी सेम कर दी. ठीक है, अब हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जो रेजिस्टिविटी को, सॉरी रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते थे. तो अब मान लो कि ये जो वायर है वो जो है किसकी है, एक्स मटेरियल की है, ये किसकी वायर है, ये वाई मटेरियल की है. लेकिन अब तुम देखने से समझ रहे हो कि अब इन दोनों को देखेंगी, और चलो इसको बोल देते हैं कि ये रेड थी, ऐसे अपना पेंट कर दिया था ऊपर, और ये थी अपने पास ग्रीन, ऐसे सोच रहे हैं. तो दोनों वायर्स को देखने पर, रेड और ग्रीन को देखने पर एक चीज समझ में आ जाएगी कि इनकी लंबाई भी सेम है और इनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है. तो हम रेजिस्टेंस को क्या बोले अब, कि अब मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि कोई भी मटेरियल दुनिया में एक जैसा नहीं होता है दोस्तों. सारी मेटल्स भी अलग अलग कंडक्टिविटी शो करती हैं, कोई अच्छी है कोई थोड़ी सी अच्छी है, और अलग अलग मटेरियल अलग अलग कंडक्टिविटी शो करते हैं. तो हमने रेजिस्टेंस में हेल्प ली थी किसकी, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की. तो अब ये तो दोनों में सेम हो गए, तो क्या हम ये मान लें कि इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? तो दोस्तों ये बात गलत है, ये बात गलत है. तो यही है कहानी, यहीं से स्टार्ट होती है. फिर हमने क्या देखा कि इस मटेरियल का हमने क्या किया दोस्तों, बिल्कुल एक छोटा सा मटेरियल उठा लिया, छोटा सा हिस्सा उठा लिया, जैसे ये काट के ले लिया. ठीक है, तो हमने ये बोला कि इसमें हमने क्या किया, ये इसकी एक यूनिट है, यूनिट समझते हो कि जैसे अपन पूरी मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने में उसका यूनिट क्या दोस्तों, उसमें एक यूनिट है ईंट.
तो अगर आप एक ईंट का करेक्टर जान जाएं तो आपको सारी ईंटों का करेक्टर एक जैसा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि घर में जो भी ईंट अपन यूज करेंगे तो वो एक जैसी ही होंगी, उनका मास भी अल्टीमेटली बराबर होगा, उनकी बनावट भी एक जैसी होगी। तो फिर एक ईंट से अपन 40,000 ईंट का क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो यही चीज अपने को सोचनी है कि हमने क्या किया, इन दोनों में एक एक यूनिट काट ली। यूनिट काट ली मतलब एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया और उसमें लग गए अपने काम में। तो अब आपको देखना है कि जो हमने दोनों की यूनिट काटी है ना, तो उस यूनिट में हमने क्या किया, क्या देखा, अब उसमें लेंथ बराबर ली थी अपन ने और एरिया ऑफ सेक्शन भी बराबर ले लिया। तो रेजिस्टेंस को डिसाइड करना अभी भी मुश्किल है, लेकिन अब रेजिस्टेंस में एक ही फैक्टर और बचता है जो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा दोस्तों। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है यहाँ पे, हम देखेंगे कि दोनों मटेरियल मतलब दिखने में सब एक जैसा है, लेकिन दोनों में, जैसे आपने देखा कि दो जुड़वा भाई हैं, उनकी ट्विन्स होते हैं तो उनकी शक्लें एक जैसी होती है, लेकिन एक को बैंगन पसंद है एक को भिंडी पसंद है, समझ आ गया। तो ये चीज होती है दोस्तों, क्योंकि आप शक्ल में बाहर से एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन आपके गुण, आपके इंस्टिंक्ट एक जैसे नहीं होते हैं, आपका अलग अलग टेस्ट होता है हर जगह पे। तो यहाँ भी आप देखें कि दिखने में दोनों सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ सेक्शन भी सेम है, लेकिन अब आपको इनके गुणों में जाना है। तो इन दोनों मटेरियल के गुणों को कौन अलग करेगा दोस्तों, इन दोनों मटेरियल के गुणों को अलग करेगा इसके अंदर के करेक्टर। तो मैंने वो सिखाया है। अब अपन देखेंगे कि अब ये एक्स है और ये वाई है, दोनों एक जैसे नहीं है। अगर ये मान लो कि ये अगर कॉपर है तो ये आयरन है, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन कॉपर कॉपर नहीं है। अब सेम लेंगे तब तो फिर थोड़ा चेंज करेगा। हमने पहले से ही बोल दिया कि दोनों मटेरियल अलग अलग है। तो हमने देखा कि एक्स में क्या देखा, ये क्या है, एक्स में देखा कि इसमें है दोस्तों N1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है इसमें, N1 फ्री इलेक्ट्रॉन और पर यूनिट वॉल्यूम जो अपना यूज किया था। और इसमें देखा कि हमने देखा कि इसमें है N2 इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आया समझ में। तो अब यहां से क्लियर होगा दोस्तों कि अगर N1 ज्यादा पाया गया N2 के, ठीक है, तो यहां पे आपको समझ आ जाएगा कि N1 मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या आपको मालूम है, मैंने सिखाया था, I इज इक्वल टू एन ई बटे टी होता है दोस्तों। I इज इक्वल टू एन ई बटे टी होता है। ठीक है, अब I अगर एन ई अपॉन टी है तो क्या ले लेंगे अपन, एन क्या है यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ई क्या यहाँ पे, चार्ज है। तो मैंने आपको सिखाया था करंट का सीधा संबंध किससे है, एन से। किसी भी मटेरियल में अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट अच्छा होगा। करंट कब अच्छा होता है आपको मालूम है, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब आप समझ गए कि अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल में ज्यादा होंगे तो वहां करंट ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से लॉजिक क्लियर होता है कि जब आपके ज्योमेट्रिकल फैक्टर आपकी कोई मदद नहीं कर पाए तो फिर हम एक ही चीज के ऊपर जाएंगे, इंस्टिंक्ट होगा, उस मटेरियल का करेक्टर होगा, और वो करेक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यही है, इसी को बोलते हैं दोस्तों, ये जो हमने बात करी है ये दोनों बातें, इसी को बोला है नेचर ऑफ मटेरियल। क्या बोला इसको, नेचर ऑफ मटेरियल। कि मीन्स अब अपन क्या बात करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो किससे संबंध रखेगी, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। क्योंकि आपने क्या किया, आपने ज्योमेट्रिकली सब कुछ अलग कर दिया, अब ज्योमेट्रिकली बराबर कर दिया, तो फिर अपने को फिर एक ही चीज बची, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों यही है कि जब हम रेजिस्टिविटी को देखते हैं तो रेजिस्टिविटी को लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं होता, याद रखें। रेजिस्टिविटी को लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं होता है। रेजिस्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल के गुण को बताएगी रिगार्डिंग रेजिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब ऐसा बोलना गलत नहीं है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस जैसी ही है, लेकिन ये स्पेशल है। स्पेशल मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस पर क्या, लेंथ, रेजिस्टेंस पर लेंथ। अब आपने देखा ना कि यहाँ पे दोनों जगह लेंथ तो बराबर थी, लेकिन रेजिस्टेंस किस में ज्यादा हुई, रेजिस्टेंस किस में ज्यादा हुई, जिसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर जो है, अब ये गुण बनेगा, एक करेक्टर बनेगा जो मटेरियल को ही क्या करेगा, बताएगा कि जैसे दो वायर ऐसी हो सकती हैं जिनकी लंबाई सेम होगी, जिनका एरिया सेम होगा, लेकिन उनकी
जो रेजिस्टेंस है वो अलग क्यों होगी? क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब दोनों में अगर अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी हूबहू सेम दिखने के उपरांत भी रेजिस्टेंस जो है वो अलग होती है दोस्तों। इसलिए हम रेजिस्टिविटी को एक तरफ से क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। समझ आ गया दोस्तों? तो ये है कहानी रेजिस्टिविटी की। ठीक है, अब हमने फार्मूला भी सीख लिया और इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि जैसे अपने को दो मटेरियल को पता करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस में अच्छा होगा, तो आप उसकी लंबाई और एरिया को अगर बराबर ले ले तो फिर एक ही साधन बचेगा कि उसके अंदर झांकना पड़ेगा। तो जिस मटेरियल में जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, अलग होंगे दोस्तों, उसी की कनेक्टिविटी क्या होगी, जो है वो अलग होगी। तो ये है गुण जो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बारे में कि जैसे हमने, अब ध्यान देना, ये है मेन पंच जो बड़े बड़े लोग इसको गलत कर देते हैं, समझते नहीं है बात को। तो आपको आप समझना है। क्या? ठीक है, देखो, रेजिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करी, लेंथ के ऊपर। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करी, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर। और एक और फैक्टर भी था दोस्तों, वो था टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर निर्भर करी, टेम्परेचर के ऊपर भी करी। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए चार फैक्टर हैं। अब आपने यहाँ पे एक बिल्कुल बिल्कुल फैसला लेना है, और कभी भी आपको कितना भी कोई भटकाए, आपने गलती नहीं करनी है। और बच्चे गलती करते हैं, आप भी करोगे, देख लेना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आपने बिल्कुल इसको फोकस करना है कि बिल्कुल गलती नहीं करनी है। और याद रखना, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में इतनी बार पूछा जाता है, और इवन टेंथ के बच्चे और ट्वेल्थ के बच्चे भी इस चीज को गलत लिखते हैं। तो अब ध्यान देना कि रेजिस्टेंस में चार फैक्टर आए, लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी का नाम क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। और ये क्या था, टेम्परेचर। लेकिन जब रेजिस्टिविटी की बात आई दोस्तों, तो याद रखना, बिल्कुल पल्ले बांध लेना, रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ सेक्शन। ये हो गया पहला काम। तो रेजिस्टिविटी जो है सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, और वो है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल जो है इसका क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक हो गया सबको? ठीक है, और एक और चीज इसको अफेक्ट कर जाती है दोस्तों, और वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, अभी और करना है, आगे एक टॉपिक आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया कि रेजिस्टिव जो टेम्परेचर है वो मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा जाता है अपने बढ़ने से, और टेम्परेचर घटा देते हैं तो उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, मतलब रेजिस्टेंस घटती है। ये आप याद रखेंगे। तो इसलिए ये मेन पंच है जो आपने कॉपी पे बड़े अच्छे से उतारना और हाईलाइटेड करना है कि resistivity depend upon only the main priority factor is nature of material and further is temperature. But always keep remember that resistivity do not depend upon the length and resistivity do not depend upon the area of cross section, while ये सारे फैक्टर कहाँ पाए जाएंगे, रेजिस्टेंस में। याद रखना, तो ये स्पेशल वाली चीज हो गई। अब मैं आपको इसको बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से और क्लियर करूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये देखो, हमने क्या किया कि जब अपने ये है कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आपको बिल्कुल फोकस करना है। हमने क्या किया, एक वायर ले ली, ये वायर है। ठीक है, और ये वायर किसकी बनी है, कॉपर की। जिसको समझ आ गया वो बोलेगा यार बहुत अच्छी चीज सीखी है, और नहीं समझ आ गया तो बार बार देखना। ये कॉपर की वायर है बच्चों, और इसका जो लेंथ है वो जो भी है वो एल है। ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्वेश्चन कितना मान लेंगे अपन, ए मान लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से काट दिया कि इसके तीन पार्ट कर दिए, या जैसे 1 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/3, 1/3 और 1/3, क्योंकि अब जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब दोस्तों हमें इस बात पे फोकस करना है कि अब अपने मटेरियल तो सेम लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब एक 1/3 पार्ट को उठा लेते हैं, काट दिया, मतलब कहां से काटा, इधर से। और बाकी की वायर जो बची वो ये हो गई, 2/3। समझा गया? अब आप क्या, एक चीज आप ध्यान से रखें कि अब आपसे पूछा जाएगा कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, ये बिल्कुल फोकस करना। अब आप सबसे पहले फोकस करेंगे, सर इसमें ना एक क्या क्या चीजें एक जैसी हैं। दोस्तों, इसमें रेजिस्टेंस दोनों की अलग हो जाएगी, R1, और इसकी क्या हो जाएगी, R2।
और R2 रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी किसके ऊपर, R1 के ऊपर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है दोस्तों, और इस मटेरियल की एरिया वही रहा, इस मटेरियल का भी एरिया वही रहा, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो लेंथ है वो छोटी है, ठीक है, और ये जो लेंथ है वो बड़ी है। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, लंबाई के ऊपर। तो इसकी लंबाई बड़ी है और इसकी लंबाई छोटी है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि मटेरियल सेम था। लेकिन अब जो है इतना अच्छा पॉइंट आ रहा है जो आपको ध्यान में रखना है, क्या, अब क्या, जब इसको काट दिया दोस्तों, तो अब बात पूछी गई कि रेजिस्टेंस तो ये बता दी तुमने, अब ये भी बताओ कि इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पगला जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है क्या, कि रेजिस्टिविटी जो है ना लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर निर्भर करेगी, वो तो एक ही बात पे निर्भर करेगी, और वो क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोस्तों आप इसे इसको समझें कि मटेरियल जब एक जैसा है तो उसमें क्या एक जैसा होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कॉपर में जहां भी कॉपर का काटोगे तो कॉपर का एटम एक जैसा ही रहेगा ना, काटने पर वो अलग थोड़ी ना हो जाएगा। तो उसका जो गुण है कौन सा, नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, वो चेंज नहीं करता है। तो याद रखें, इसको अपन ऐसे भी सीख सकते हैं, देखो, जब आपकी बॉडी है और आपका जो ब्लड ग्रुप है, मान लो ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, ऐसा बोल सकते हैं, तो जिस बंदे में दो ब्लड ग्रुप तो किसी में नहीं होते, आपको मालूम है, ये जरूर होता है, किसी का ब्लड ग्रुप रेयर होता है, किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो कॉमन होता है। तो याद रखें कि जो आपका शरीर है वो एक आकार है, एक एक लेंथ है, एक एरिया है, वो मान लो, लेकिन आप में एक चीज सेम है दोस्तों, चाहे आपकी उंगली का खून ले लो या आपके कान का खून ले लो, चाहे आपकी इंटेस्टाइन में खून ले लो, जो भी हो, तो वो सारे खून का जो ब्लड ग्रुप होगा दोस्तों, वो अगर बी पॉजिटिव है तो आपके नाक में भी बी पॉजिटिव दौड़ रहा है, आपके पैर के अंगूठे में भी बी पॉजिटिव है, और आपके हर अंग में बी पॉजिटिव दौड़ रहा है। याद रखें इस चीज को। तो इसीलिए ध्यान दें, जो मैंने बात करी है, तो इसी तरह से जो नेचर ऑफ मटेरियल है, किसी एक मटेरियल का अलग अलग नहीं होगा, चाहे उसको काट लो, उसको छोटा कर दो, उसको लंबा कर दो, चपटा कर दो, कुछ भी कर लो, उसका नेचर ऑफ मटेरियल चेंज नहीं करेगा। तो यही ब्यूटी है यहाँ पे, कि काटने पर रेजिस्टेंस इसलिए चेंज हुई क्योंकि वो लेंथ और एरिया के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या बनी रहेगी, रेजिस्टिविटी बराबर बनी रहेगी दोनों की, क्योंकि दोनों किसके बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि किसी एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी उसके काटने पर, उसके 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 छोटा करने पर, लंबा करने पर चेंज नहीं करती है, रेजिस्टेंस चेंज करती है, क्योंकि वो लंबाई और एरिया के ऊपर निर्भर करती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ विशेष गुण है जो उसके सिर्फ मटेरियल पे जो है वो ट्रस्ट करता है, और मटेरियल को ही देखा जाता है। तो किसी एक मटेरियल में, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, दुनिया भर की मेटल्स हैं, उन एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी की बात की जाएगी तो वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे उस मटेरियल को आप काट दो, छोटा कर दो, लंबा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल एम्फेसाइज करना, बिल्कुल फोकस करना, और अच्छे से समझ के चलना, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो अपन करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, और आपके पास अगर नॉलेज डीप नहीं होगा तो आप उसका आंसर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब अपन देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक वायर है इस तरह से, ठीक है, ये भी एल्यूमिनियम की बनी हुई है, ठीक है, और एक दूसरी वायर है, ठीक है, जो इससे मोटी है। समझ आ गया। अब आपको ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये दोनों वायर की जो लेंथ है दोस्तों वो सेम है, इसकी भी और इसकी भी एल है, इसका एरिया ए है, और ये भी एल्यूमिनियम का मान लेते हैं, और इसका एरिया जो है वो क्या है, 3A है। ठीक है, बिल्कुल फोकस करना इन चीजों में, क्वेश्चन बोर्ड के हैं। तो हमने क्या किया कि दो एल्यूमिनियम की वायर ले ली दोस्तों, और एक की लेंथ भी एल है, दूसरे की भी एल है, एक का एरिया ए है और एक का एरिया जो है वो क्या है, थ्राइस ऑफ ए है, मतलब वो 3 गुना है, 3 गुना मोटी मान सकते हैं इसको। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है
कि इन दोनों में किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर दोनों की रेजिस्टेंस को बराबर करना पड़े तो क्या करोगे। समझ आ गया? ढंग से सुन लो कि वी हैव टू एल्यूमिनियम वायर्स एंड हैविंग सेम लेंथ but different area of cross section. So you are asked, that is, of which wire we have more resistance, and if we want to make the resistance same of the two wires, what we will do। ठीक है, तो आपको आंसर में ही लिखना होता है। तो मैं समझाऊंगा और आपने इसका क्वेश्चन बना के इसका आंसर खुद लिख के मुझे बताना है कि सर वी डिड इट। तो ध्यान दें इसमें कि लेंथ सेम हो गई, अब आपको फोकस करना है किसके ऊपर, आर के फार्मूले पे। तो डिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करती है, तो ये तो दोनों में सेम हो गई, तो इसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक हो गया। अब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा क्वोशिएंट छोटा हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि जो मोटी वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है दोस्तों। तो यहाँ पे सीधा फैसला आप ले सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है किसकी, मोटी वायर की, उसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन पी वायर और इसको मान लिया क्यू वायर। तो हम लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ पी वायर है वो ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ऑफ क्यू वायर की। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंथ दोनों की सेम हो गई लेकिन एरिया सेम नहीं होने के कारण जो मोटी वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों ये आ गई बहुत ही मजेदार चीज। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ वी कैन मेक द रेजिस्टेंस आर पी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर क्यू। इज इट पॉसिबल, क्या ये हो पाएगा दोस्तों? तो मेरा कहना है कि हो पाएगा। अब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर में क्या लिखना रहेगा, आप आंसर में लिखोगे कि क्या करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस सेम करनी है। यार क्या करूं क्या करूं। ठीक है, ये वायर तो पहले से ही पतली है और ये वायर मोटी है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो मोटी वायर है उसकी रेजिस्टेंस तुम बढ़ाना चाहते हो दोस्तों। क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, और किसके बराबर लाना चाहते हो, पी वायर के। तो हमें पता है कि हम इस वायर को अगर फैला दे, क्योंकि मेटल फैलती हैं आपको पता है, मालिएबल है ना, मतलब कि डक्टाइल, उनको पीटा जा सकता है, उनको लंबा किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, मोटी वायर को क्या करेंगे दोस्तों, पतला कर देंगे। कैसे कर देंगे, इसी लंबाई को अपन स्ट्रेच करेंगे। तो जैसे स्ट्रेच करेंगे, जैसे इसी मटेरियल पे स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वायर की जो लेंथ है वो क्या होती चलेगी, पतली होती चलेगी, और लेंथ बढ़ने के उपरांत आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती चलेगी और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन घटता चलेगा। तो इसके आंसर में क्या लिखना है कि यस इट इज पॉसिबल व्हेन वी स्ट्रेच द थिक वायर देन एट पर्टिकुलर लेंथ। कभी ना कभी ऐसी लेंथ आ ही जाएगी कि इस वायर की रेजिस्टेंस भी ऊपर वाली रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस पूरी चीज को आप अपनी लैंग्वेज में जोर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जो समझिएगा और जो भी डाउट होगा आप पूछिए इसमें। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास जो है क्या है, एक वायर है। ठीक है, तो वो बोल देता है कि इस वायर का जो लंबाई है वो है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो कितना दे देता है, वो दे देता है, दैट इज मान लो इसको ले लेते हैं अपन 5 mm होल स्क्वायर। मिलीमीटर होता है दोस्तों, ये मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वायर ले ली हमने, इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन 5 mm होल स्क्वायर का है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो हमें दे दी जाती है कितनी, अ, इसको ले लिया अपन ने 100 ओमेगा। ठीक है, ये आ गया। कोई क्वेश्चन है जो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये देने के बाद आपसे पूछा जाता है कि ये सारे पैरामीटर को यूज करिएगा और इसकी रेजिस्टिविटी निकालिएगा। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, रेजिस्टिविटी इसकी क्या है। तो लेट अस डू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे दोस्तों अपन, सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे कि भाई ये सब दिया है अपने को, और अपने पास था फार्मूला, याद रखें, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। कर चुके हैं, इसको अच्छे से याद कर लें। तो अब आपको याद है कि जब भी अपन यूनिट सिस्टम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही फ्रेम में सबको रखते हैं। तो वही चीज अपने को यहाँ करनी होती है, बाकी सब आसान होता है। तो ये देखें, ये कितना है, आर रेजिस्टेंस, ये स्टैंडर्ड में दिया है,
इसको अपना यूज कर लिया, सो ये दिया था, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वेश्चन कितना है 5 mm, तो mm इज नॉट एसआई यूनिट, मिलीमीटर, तो हमें इसको काय में लाना पड़ेगा, मीटर में। तो क्या करेंगे, मीटर में मिली का मतलब क्या होता है -3, पहले ही सिखा चुका हूँ। m कितना दिया 5 × 10⁻³ मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब -3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मीटर में बन गया। और इसका क्या लिया अपन ने, दैट इज आपको मालूम है कि हमने क्या यूज किया इसको 5 × 10⁻³ लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि इसमें जो है वो क्या है 10⁻³ का होल स्क्वायर भी नहीं भूलना, मतलब भूलें इसको। इसको ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी अपन एरिया लेते हैं तो क्या लेते हैं, उसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ पढ़ा ना छोटी क्लासेस में, तो उसमें क्या लिखते हैं अपन, लेंथ अगर मीटर में है तो ब्रेड्थ भी मीटर में ली जाएगी ना, तो हम क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था कि उसमें जो पैरामीटर यूज हुए वो क्या थे में, तो मिलीमीटर मिलीमीटर, तो मिलीमीटर मिलीमीटर क्या हो गया, मिलीमीटर का होल स्क्वायर। लेकिन 1 मिलीमीटर का क्या मतलब था 10⁻³ तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर भी लिखा है। तो अपन इसको सॉल्व करते समय ध्यान दें कि 5 तो क्या है, 5 तो उसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर मतलब को लिख दिया और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और नीचे बचा दोस्तों 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी क्या है एसआई नहीं है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं 10⁻²। कैसे लिया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, ठीक है ना। इतना आप कर सकते हो, 10th में पढ़ रहे हो। तो अब आगे ये आ गया दोस्तों रो, ये आ गया 100, ठीक है, ये आ गया 5, और ये कितना हो गया 10⁻⁻6, राइट। और नीचे कितना आ गया 10, अब इसकी पावर कितनी है 1, तो ये कितना रह गया 10⁻⁻1, क्योंकि दोनों के बेस से में पावर ऐड हो गई, ठीक है। अब आगे रो इज इक्वल टू, ये आ गया दोस्तों 100 × 5, 10⁻⁻1 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा, और इसके साथ सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा -5, ठीक हो गया दोस्तों। और आगे यहाँ पे आप ध्यान से देखें अब कि ये जो 2 जीरो हैं इसको यहाँ पे डालेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5, ठीक है, ये कितना बन जाएगा 5, ठीक है। और ये 2 जीरो जब इसमें डिसॉल्व हो जाएंगी तो ये 2 है तो कितना रह जाएगा -3, क्या रह जाएगा -3, और यूनिट क्या बनेगी ओमेगा मीटर, क्या बनेगी ओमेगा मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया गया और आपने इसको सॉल्व किया। तो हमेशा आपको यही आता रहेगा, कभी भी वायर का अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस और लेंथ की बात करेंगे, लेंथ भले ही मीटर में आएगी लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कभी भी मीटर में नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि आपके घर में भी जो वायर यूज करते हो केबल वाली, उस वो भी कितनी पतली होती है, तो वो मीटर में थोड़ी ना होती है, वो बहुत में ही उसको लिया जाता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को जो है आपने समझ के करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप करिएगा घर पे, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन ये है कि आपको 2 वायर में देता हूं, आपने दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। पहले क्वेश्चंस में ये दिया जाता है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है दोस्तों, वो है 50 ओमेगा का, ठीक है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब समझ जाना है कि सेंटीमीटर को कैसे बदलना है। तो आर भी दे दिया गया और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसकी आपको रेजिस्टिविटी जो है वो निकालनी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी आप करेंगे, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, वो ले लिया अपन ने 20 ओमेगा, ठीक है। और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोस्तों, वो अपन ने कितना ले लिया, वो ले लिया अपन ने दैट इज इसको लेते हैं अपन 10 mm होल स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी आ गई, एरिया क्वेश्चन में आ गया, और लेंथ जो है, लेंथ हमने जो है वो यूज कर ली, कितनी लेंथ यूज कर ली अपन ने 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी भी आपको क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। और यूनिट यूनिट काय में आएगी ओमेगा मीटर में, यूनिट काय में आएगी ओमेगा मीटर में, बी केयरफुल, ठीक है। अच्छे से करें इनको, ठीक है। थैंक यू।